اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک خوبصورت قرآنی وظیفے کو لے کر آپ کا بھائی احمد رضا آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس خوبصورت قرآنی وظیفے کے متعلق بات کرنے چلے ہیں وہ قرآن پاک کی سردار آیت یعنی کہ تمام آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت الکرسی اپنے اندر بے شمار فیوز و برکات، بے شمار خصائل، بے شمار برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ اس سے قبل کہ میں اس کے خوبصورت وظائف آپ کے سامنے رکھوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، محترم سامعین و ناظرین، آئیے اس سے قبل قرآن پاک کی اس عظیم آیہ مبارکہ کے متعلق کریم نبی علیہ السلام کے چند ارشادات اور آپ علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ احباب کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ قرآن پاک کی یہ آیہ اپنے اندر کس قدر برکات رکھتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مقدسہ کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ عزیزان مکرم، محترم سامعین و ناظرین، بعض روایات میں اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی کو، اور اس کی تلاوت کو 1/4 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر فرمایا گیا ہے، یعنی کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے سے 7.5 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا صبح و شام اس کا پڑھنا اور فرض نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا انسان کو شر سے محفوظ رکھتا ہے اور انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ کریم اسے شام تک جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور جس نے شام کو آیت الکرسی پڑھی اللہ کریم اس کو صبح ہونے تک تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار جو ہیں وہ فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے دونوں ہاتھوں کو بھر کر غلہ لینے لگا، دونوں ہاتھوں سے بھر کر یعنی کہ غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم علیہ السلام کے پاس لے چلوں گا۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ برابر تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا، یعنی کہ اللہ کریم پوری شب رات بھر جو ہے وہ اللہ کریم تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور شیطان سے بھی اللہ کریم جو ہے وہ تمہیں محفوظ فرمائے گا، اللہ کریم جو ہے وہ شیاطین سے بھی اس آیہ مقدسہ کی تلاوت سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں کسی پختہ عقل مسلمان شخص کو نہ دیکھوں گا، یعنی کہ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ کسی پکے مسلمان شخص کو میں ایسے کرتا ہوا نہ دیکھوں گا کہ یہ آیت یعنی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھے ہوئے بغیر جو ہے وہ سوئے، اگر تم جان لو کہ اس میں کیا ہے تو اسے کسی حال میں بھی نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے نیچے سے مجھے دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہ دی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، کوئی ایسی شب نہ گزری جس میں میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کریم بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و ناظرین، ایک اور حدیث پاک آیت الکرسی کے فضائل و برکات کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ
ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला बजाते खुद उसकी रूह कब्ज फरमाता है और वो उस मुजाहिद का दर्जा पाता है जिसने अल्लाह ताला के नबियों और रसूलों की जानिब से जहाद किया हो और वो उसमें शहीद कर दिया गया हो। अल्लाह अकबर। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए इस कदर जो है वो अजर व सवाब है और उसका इतना मकाम और मर्तबा है। एक और हदीस पाक में हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोक के रखती है, यानी कि जब तक उसे मौत नहीं आ जाती वो जन्नत से दूर है और जब वो मरेगा तो सीधा जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। इसका इंतकाल हुआ ही नहीं कि जन्नत में कैसे दाखिल हो। और फरमाया जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर और उसके पड़ोसी के घर और उसके आसपास के घरों को जो है वो शयातीन से और चोरों से महफूज रखता है। सुभान अल्लाह। फरमाया हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है जो शख्स बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ता है सुबह तक 2 फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है आयतुल कुर्सी की एक जुबान और 2 होंठ हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि आयतुल कुर्सी को अल्लाह करीम ने एक जुबान और 2 होंठ अता फरमाए हैं और वो साके अर्श के पास मालिक कायनात की तस्बीह व तकदीस करती है। अल्लाह अकबर। हाकिम की रिवायत है हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, फरमाया हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मैं आपके सामने बैठ गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोजे और सदका के फजाइल बयान किए। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर सबसे अजीम आयत कौन सी नाजिल हुई? तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबान मुबारक को जुम्बश हुई और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयतुल कुर्सी को मुकम्मल पढ़ा, यानी कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम को जो है वो आखिर तक पढ़ा और फरमाया कि मेरे ऊपर सबसे अजीम आयत जो नाजिल हुई है वो आयतुल कुर्सी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ा अल्लाह ताला उसको दूसरी नमाज तक अपनी हिफाजत में रखता है और आयतुल कुर्सी की हिफाजत सिर्फ नबी, सिद्दीक या शहीद ही करता है। अजीज़ा ने मुकर्रम मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इससे साबित हुआ कि फ़र्ज नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी का पढ़ना नबियों, सिद्दीकों और शहीदों की सुन्नत पर अमल करना भी है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपने आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस जो हैं वो समात फरमाई। अब मैं इसके जो वज़ाइफ हैं वो आपकी समातों के हवाले करता हूं, आप अहबाब इनको नोट फरमा लें। अहबाब ज़ी वकार मोहतरम सामीन व नाज़रीन, किसी चीज की हिफाजत के लिए आपको डर है कि इसको जो है वो रोबर जो है वो डाकू हैं वो रोब करके ना ले जाएं या चोर जो है वो चोरी करके ना ले जाएं, तो आप उस चीज के पास खड़े होकर 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने चारों तरफ और उस चीज के चारों तरफ जो है वो फूंक मार दें। इंशाअल्लाह ये जो है वो आयतुल कुर्सी दिन और रात, ठीक है जी, 24 घंटे आपकी उस चीज की हिफाजत करेगी। एक और इसका वजीफा समात फरमा लें कि आयतुल कुर्सी के 170 हुरूफ हैं, तो 170 हुरूफ की निस्बत से जो शख्स 170 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 170 मरतबा जो है वो आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, इस नीयत के साथ और इस जहन के साथ, ठीक है जी, कि जो आपकी मुश्किल है अल्लाह करीम उसको हल फरमाए, अपनी तमाम तर मुश्किलात आपकी
आपको रिस्क की मुश्किलात हैं, आपको शादी के हवाले से परेशानी है, आपका रिस्क की बंदिश है, जादू टूने के असरात हैं, आपकी कोई भी मुश्किल है, आप उसको पेश नजर रखें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 170 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें। अल्लाह करीम आपको इस अमल के वसीले से और इस अमल के सबब अल्लाह करीम आपको तमाम जो है वो तमाम अक़साम की मुश्किलात से दूर फरमाएगा। एक और इसका जो है वो खूबसूरत वजीफा है, आप अहबाब फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 41 मरतबा, अगर आसानी मुयस्सर हो तो 41 मरतबा या 21 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें और 21 या 41 मरतबा पढ़ने के बाद आप 7 मरतबा फिर जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद अपनी तमाम तर तकालीफ, दुख, दर्द, परेशानी, मसाइब अलाम, रंज, मुसीबत, गम, कोई परेशानी है, जो भी दीन दुनिया की जो भी परेशानी है उसको पेश नज़र रखते हुए अल्लाह के हुजूर दुआ करें। अल्लाह करीम आपको तमाम अक़साम की मुश्किलात से महफूज फरमाएगा और आपके जो भी जायज़ दिली हाजात हैं, आपकी जो भी है नेक जो है वो हाजात हैं, अल्लाह करीम ज़रूर बज़रूर जो है वो पूरी फरमाएगा। अहबाब ज़ीवकार, चौथा वजीफ़ा मोहतरम सामीन व नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अगर इस वजीफे को करेंगे सच्चे दिल के साथ, पुख्ता अकीदे के साथ, पक्के एतिकाद के साथ, यकीन के साथ, ईमान के साथ, तो आपके यहाँ रिस्क इस तरह से बरसेगा जिस तरह बारिश के कतरे जो हैं वो आपके आंगन में, आपके सेहन में जो है वो बसते हैं, बरसते हैं। अजीज़ान मुकर्रम मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इस वजीफे का आगाज करने से पहले आप सदका करें, सदका व खैरात करें। अपनी हिम्मत और इस्तेताअत के तक आप 10 रुपये कर लें, 50 कर लें, 100 कर लें, 200 कर लें, 500 कर लें, 1000 रुपया कर लें। सदका व खैरात करने के बाद मगरिब की नमाज के बाद आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद 51 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें। 51 टाइम्स यानी कि 51 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ने के बाद 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और याद रखिएगा कि कोई भी वजीफा करने से पहले अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो यह सबसे अफजल और आला अमल होगा। तो 3 मरतबा पहले आगाज में दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 51 मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ें, उसके बाद फिर 3 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद अपने बदन पे फूंक मारनी है। बदन पे फूंक मारने के बाद आपने जो है अपना सर सजदे में रखना है। सर सजदे में रखकर आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, मुश्किल है, उलझन है, तो इस जो है वो वजीफे के सदके अल्लाह करीम आपको दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाएगा। तो ये जो है वो वजीफा करने के बाद सर सजदे में रखकर अगर आप जो है वो दीन और दुनिया की भलाइयां भी अल्लाह करीम से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको दीन और दुनिया की भलाइयां भी अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम और प्यारे सामीन व नाज़रीन, याद रखिएगा कि अल्लाह का पाक कलाम जो है वो शिफा से भरा हुआ है। इसमें रूहानियत की एक भी ऐसा लफ्ज नहीं, खुदा न खास्ता कि जिसमें रूहानियत की कमी हो। ये हम में जो है वो रूहानियत की कमी हो सकती है, वजीफा करने वाले के जुबान में जो है वो मिठास कम हो सकती है, या वो जो है वो नेक अमाल से, नेकी से, फ़राइज़ से दूर हो सकता है, लेकिन अल्लाह करीम के कलाम में जो है वो रूहानियत में कमी नहीं हो सकती। तो जो मैं गुजारिश करूँगा कि जो अहबाब ये वजीफ़ा करें वो कोशिश करें कि नमाज पंजगाना 5 वक्त की नमाज जो है वो ज़रूर अदा फरमाएँ और चलते फिरते हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाकमाल पर दुरूद शरीफ का और दुरूद सलाम का भी जो है वो विरद रखें। वीडियो को देखने का बहुत ही शुक्रिया। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंच सके। और आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है वो इसको लाइक और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों का भी इसमें जो है वो फ़ायदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।